embedded here. So first of all, we have used the frame set tag. Using the frame set tag, we will divide this into two parts: first row, second row. So first row and second row both are 50%. You can see here frame set tag. This is the frame set tag. We have replaced the body tag here completely. There is no use of body tag. You can see here. Again, the frame set tag. We have divided this page into two parts using the rows attribute. Two rows, 50% of the window size and this 50% of the window size. You can see first one 50% of the window size, second one 50% of the window size. Again, we have used the frame set tag. Why? Because the second row is divided into two columns, two equal columns. So first row is as it is, but the second row is divided into two columns of equal size, 50%, 50%. So here you can see. So again we have used the frame set columns, and here we have used the calls attribute. It will divide the page into two parts, 50%, 50%. So you can see the relation here, rows equal to 50%, 50%. So first frame is 50%. Now first frame will contain the frame which is written first. Source equal to a.html. So a.html is a file. You can see what it contains. Link is not working, I think. So source is a.html and the name of this frame is frame A. And in the second 50%, what we have done, when this one comes into picture, this 50%, we have again used the frame set tag, which is dividing this frame into this frame, which is the complete row, into two parts, 50% and 50%. Now inside the frame set tag, we have used two frames, b.html and c.html, and name of the frames are frame B and frame C. So name of this frame is frame B, name of this frame is frame C, name of this frame is frame A, and we have divided the second row into two columns, and which contains the information like this. So here you can see we have clicked here and see the page source, means what this particular page information contains, what is the HTML document of this web page. So you can see this one, body background color is red and civil engineering, and this body tag. So background color is red, so it is showing for this one, and similarly we can see for other one also. So background color is green, information technology. This is for this one, which is not showing actually. The color is not picking up due to the browser's fault. It may be the browser fault. But here the red color is picking up. So you can see the background color of first frame is red. Okay. निखिल साहब, हम उनको नेस्टेड टैग भी कह सकते हैं ना, कि जो एक फ्रेम सेट है उसके पास हमने एक फ्रेम यूज़ किया, फ्रेम के हिसाब से हमने दो टुकड़े किए, यानी कि हम पूरे पेज को 100% समझ के चलते हैं और वो पेज को हम डिवाइड करके हम अपना फ्रेम बनाते हैं. नहीं, नेस्टेड नहीं कह सकते आप, बिकॉज फ्रेम सेट टैग हम यूज़ करते हैं हमको कैसे डिवाइड करना है उस पेज को. ठीक, अब उस पेज के अंदर हमें कोई फ्रेम ऐड करना है, उसके लिए हम फ्रेम एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं. अब हम किसी पेज को सपोज दैट हम 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 रोज़ में डिवाइड करना है, और उसको फर्स्ट रो को हमको 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है. तो पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रेम सेट रोज इक्वल टू, वी हैव टू डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, मीन्स 25%, 25%, 25%, 25% ऑफ द विंडो साइज. सो रोज इक्वल टू 25%, 25%, 25%, 25%. अगेन फॉर द फर्स्ट फ्रेम, नाउ इनसाइड दैट वी आर गोइंग टू ऐड द फर्स्ट फ्रेम इन द फर्स्ट रो. So within first row, what we will write, we will again use the frame set tag, because for first row we are going to divide into 3 different frames. तो फर्स्ट रो को हमको 3 अलग फ्रेम्स में डिवाइड करना है. तो हम फिर से फ्रेम सेट यूज़ करेंगे. तो उस फ्रेम को हमको फिर से डिवाइड करना है, तो फ्रेम सेट के अंदर दूसरा फ्रेम सेट टैग हम नेस्ट कर रहे हैं. तो उसको हम फ्रेम सेट कॉलम्स इक्वल टू 3 पार्ट में डिवाइड करना है. तो पहला सपोज दैट 20% का होना चाहिए, दूसरा 20% का, और बाकी रिमेनिंग जो भी है वो साइज़ होनी चाहिए. तो हम 20%, 20% स्टार करके लिखेंगे. तो वो जो रिमेनिंग साइज़ है वो पूरी
ले लेगा। तो हम फर्स्ट रो को 3 फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हैं, फिर दूसरा फ्रेम जो होगा वो पूरी रो कंटेन करेगा, तीसरा फ्रेम भी पूरी रो कंटेन करेगा और चौथा फ्रेम भी पूरी रो कंटेन करेगा। सो इस तरह से फ्रेम सेट और फ्रेम दोनों का यूज़ करते हुए हम एक पेज को कितने भी फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर फ्रेम एक अलग वेब पेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा और उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा। ओके तो निखिल साहब, अभी तक हमने देखा कि बॉडी टैग क्या है, लिस्ट टैग क्या है, फ्रेम और फ्रेम सेट क्या है। अब हमको वो भी जानना है कि हम फॉर्म टैग जैसा कुछ होता है कि जहाँ पे हम इनपुट करेंगे तो कुछ डेटा यहाँ से क्लाइंट से डेटा जाएगा और सर्वर को मिलेगा, तो वो सारे सभी टैग्स इसके हिसाब से जो कंट्रोल भी होते हैं, इनपुट कंट्रोल होते हैं, पासवर्ड कंट्रोल होता है, वो आप ज़रा ओवरव्यू में एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो? बेसिकली हम जनरली डेली लाइफ में बहुत सारे फॉर्म्स हमने फिल किए होंगे, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जीमेल अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं या फेसबुक अकाउंट आप क्रिएट करने जाते हैं तो साइन अप फॉर्म होगा, उसमें आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, क्या पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, देन आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन, कोई टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपको कुछ वैल्यूज़ भी सेलेक्ट कर, लाइक आपका सेक्स क्या है, मेल और फीमेल, और भी चेक बॉक्सेस होते हैं। मतलब इस टाइप के बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिनको हम की फॉर्म कंट्रोल्स बोलते हैं, इनपुट एलिमेंट्स, वी कैन से ऑल्सो एज इनपुट एलिमेंट्स और फॉर्म कंट्रोल्स। सो उसका यूज़ करते हुए हम एक फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी सर्वर पे प्रोसेस होंगी और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रिज़ल्ट होगा वो हमें डिस्प्ले होगा। नाउ ये फॉर्म बेसिकली फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। बॉडी के अंदर हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे, तो ये भी एक कंटेनर टैग है। तो फॉर्म का ओपनिंग टैग होगा, देन क्लोजिंग टैग होगा। नाउ जो भी एट्रीब्यूट्स हमें मेंशन करने हैं उसको हम ओपनिंग टैग के अंदर रखते हैं। तो फॉर्म का ओपनिंग टैग है, उसके अंदर फॉर्म के कई एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक एक्शन। वो सब आप साथ में प्रैक्टिकल के हिसाब से बताएंगे तो बच्चों को समझ में अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म टैग है जिसमें कई सारे बच्चे होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे यूज़ करना है, तो वो भी सभी सारे एट्रीब्यूट जो आप बताने वाले हो या समझाने वाले हो वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। हाँ, मैं आगे इनको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा फॉर्म टैग में, बट पहले मैं उनको सिंटैक्स बता देता हूँ कि फॉर्म टैग, बेसिकली फॉर्म टैग का सिंटैक्स क्या है। ये एक फॉर्म टैग है। तो फॉर्म टैग, अगर हमें कोई भी फॉर्म क्रिएट करना है, सो बॉडी टैग के अंदर हम फॉर्म लिखेंगे, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। सो और उस फॉर्म टैग का सिंटैक्स क्या होगा, इस फॉर्म में फॉर्म ओपनिंग एंड फॉर्म क्लोजिंग। और इसके अंदर हमें जो भी एलिमेंट्स लिखने हैं वो हम एलिमेंट लिख सकते हैं, लाइक हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, बटन चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट एरिया चाहिए, रेडियो बटन चाहिए, जो भी चाहिए हम इसके अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा वो सारे एलिमेंट्स। नाउ फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स, पहला एट्रीब्यूट होगा एक्शन, कि हमें क्या एक्शन लेना है। बेसिकली एक्शन क्या होता है, ये एक बैक एंड स्क्रिप्ट होती है जो कि जो भी डेटा हम फॉर्म में इंटर करेंगे उसको प्रोसेस करेगी। लाइक हम फॉर्म में अपना फर्स्ट नेम जो भी लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ पासवर्ड होगा, देन कुछ ईमेल आईडी जो भी हम रखना चाहते हैं, हमारा फ़ोन नंबर होगा। तो वो सारी वैल्यूज़ जो भी हम इंटर करेंगे फॉर्म में, वो उसकी प्रोसेसिंग बैक एंड पे होगी। बैक एंड में सर्वर साइड एक स्क्रिप्ट होगी जो उसको प्रोसेस करेगी। तो वो डेटा हम वहाँ पे फिल करेंगे, तो जब हम सबमिट करेंगे उस डेटा को तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वहाँ पे सर्वर साइड में जो स्क्रिप्ट होगी वो उसको रन करेगी। तो कौन उसको रन करेगा, कहाँ पे हमें सेंड करना है, वो हम एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर लिखेंगे। तो फॉर्म के अंदर एक एक्शन एट्रीब्यूट होगा जिसमें हमको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन ये प्रोसेस करने जा रहा है इस डेटा को जो हम फिल करेंगे फॉर्म के अंदर। नाउ मेथड क्यों यूज़ होगा कि हमको वो डेटा जो हमने फिल किया है वो डेटा वो कैसे सेंड होगा। ठीक, तो इसके 2 तरीके हैं, एक रिक्वेस्ट मेथड है, गेट रिक्वेस्ट, एंड पोस्ट मीन्स किसी को सेंड करना। गेट एंड पोस्ट 2 मेथड है हमारे पास। तो गेट मेथड क्या होती है कि जो भी हम डेटा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे उसमें जो भी डेटा होगा, जो भी टेक्स्ट कंट्रोल होगा, लाइक टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स और उसके करस्पॉन्डिंग उसमें जो भी हम वैल्यू इंटर करेंगे, सो उसका एक पेयर बनाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स मीन्स उसका जो नेम है एंड देन उसकी वैल्यू। सिमिलरली पासवर्ड है तो उसकी क्या पासवर्ड डाला है आपने, तो वो पूरी चीज़ क्या होगा उस URL के साथ वो कॉन्कैटिनेट करेगा, उसको अपेंड कर देगा और उसको डायरेक्टली सेंड कर देगा।
सो इस केस में क्या है, गेट मेथड बहुत ही अनसिक्योर मेथड है। अगर हमें सेंसिटिव डेटा भेजना है तो हम गेट मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। और इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि इसके कैरेक्टर लेंथ की एक लिमिटेशन होती है कि इसमें 1024 कैरेक्टर से ज़्यादा हम नहीं भेज सकते हैं। और कोई अगर फाइल हम सेंड करना चाहते हैं प्रोसेसिंग के लिए तो हम फाइल भी सेंड करने के लिए गेट मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। और ये क्या करता है, बुक मार्किंग को भी अलाउ करता है। हम इसमें कैश कर सकते हैं, बुक मार्किंग कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अलाउड होती हैं गेट मेथड में। जबकि पोस्ट मेथड क्या होता है, इसमें हम कितने भी साइज़ का डेटा सेंड कर सकते हैं। और इसमें जो डेटा सेंड होता है वो बेसिकली URL के साथ अपेंड नहीं होगा, बट एक HTML पोस्ट मेथड है, उसके अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स होंगी, उस फील्ड में डिफरेंट कॉलम डिफरेंट रोज़ में डिवाइड करके उस डेटा को वो सेंड करेगा। और ये बुक मार्किंग या कैशिंग ऑफ डेटा, ये सारी चीज़ें ये अलाउ नहीं करता है पोस्ट मेथड। और इसमें डेटा लिमिटेशन नहीं है, हम कितने भी साइज़ का डेटा सेंड कर सकते हैं। और बेसिकली पोस्ट मेथड हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें सिक्योर या सेंसिटिव डेटा सेंड करना होगा, उस केस में हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। सो मेथड एट्रीब्यूट जो है उसके लिए हम 2 वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, गेट एंड पोस्ट। एंड एक्शन में हम वो एक्शन डिफाइन करेंगे कि कौन इसको प्रोसेस करने जा रहा है। कोई भी ASPX करके कोई भी स्क्रिप्ट हो सकती है जो कि हमारे फिल डेटा को प्रोसेस करेगी। टारगेट एट्रीब्यूट एक होता है कि जो हम डेटा फिल करेंगे उस डेटा को फिर हम गेट और पोस्ट मेथड का यूज़ करते हुए हम सर्वर पे सेंड करेंगे। सर्वर उस डेटा के करस्पॉन्डिंग उस डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद कुछ रिज़ल्ट जनरेट करेगा, तो उस डेटा के करस्पॉन्डिंग वो कुछ एक्शन लेगा, बिकॉज वी हैव फिल्ड द फॉर्म फॉर सम एक्शन। ठीक, तो हमने जो फॉर्म हम फिल करते हैं वो किसी चीज़ के लिए, किसी पर्पस के लिए फिल करते हैं, ऐसे ही फिल करके छोड़ तो देते नहीं है। तो आफ्टर फिलिंग द फॉर्म दैट डेटा विल बी सेंड टू द सर्वर। नाउ द सर्वर विल प्रोसेस दैट डेटा एंड जनरेट सम रिजल्ट। और वो रिजल्ट कहाँ पे सेंड करना है वो हम टारगेट एट्रीब्यूट में मेंशन करते हैं। तो टारगेट इक्वल टू हमारे पास एक होगा, टारगेट इक्वल टू डैश करके एक नाम देंगे, कोई भी नाम देंगे, फ्रेम का नाम हो सकता है या पेज का नाम होगा, वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा वो रिज़ल्ट। ये तो सारी चीज़ें हैं फॉर्म टैग के बारे में। ना एक और चीज़ आता है फॉर्म टैग के अंदर, इंक्रिप्शन टाइप, ENC टाइप, इंक्रिप्शन टाइप। तो वो डेटा हमारा अनइनक्रिप्टेड होगा, इनक्रिप्टेड होगा। सो अगर इंक्रिप्शन किया हुआ है, इंक्रिप्शन तो कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है इंक्रिप्शन के लिए, तो वो बात की चीज़ है। अभी पहले हम डिज़ाइनिंग देखते हैं कि फॉर्म कैसे डिज़ाइन करना है। नाउ फॉर्म के अंदर डिफरेंट फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। सो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो हम देखते हैं थोड़ा। इनपुट एलिमेंट्स, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, हम जिसमें टेक्स्ट वैल्यू इंटर करेंगे, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सेलेक्ट बॉक्सेस, बटन कंट्रोल्स, फाइल अपलोड बॉक्सेस। सो इनपुट, किसी भी इनपुट कंट्रोल को अगर हमें देना है तो उसके लिए हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। ठीक, सो अब इनपुट टैग के अंदर अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट होगा। तो टेक्स्ट अगर हमें इंटर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन, अपना नाम इंटर करना है या कोई भी पासवर्ड इंटर करना है या अपना एड्रेस इंटर करना है, तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, पासवर्ड एंड मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल के लिए इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। इसकी टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू जो भी उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, उसकी वैल्यू अगर हम उसको इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं कि उस टेक्स्ट बॉक्स में जब भी वो वेब पेज ओपन हो तो उसमें नाम ये लिख के आना चाहिए, तो ये वैल्यू में हमको देना पड़ेगा। उसकी साइज़ मीन्स विड्थ ऑफ दैट इनपुट कंट्रोल, उस टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ क्या होगी, 30। तो ये 30 कैरेक्टर्स। और मैक्सिमम लेंथ, हियर वी हैव मेंशन मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू 10, मीन्स हम उस टेक्स्ट बॉक्स में 10 से ज़्यादा कैरेक्टर इंटर नहीं कर सकते। सिमिलरली पासवर्ड के लिए भी सेम है, बट टाइप इक्वल टू पासवर्ड हमें लिखना पड़ेगा। बाकी सारे एट्रीब्यूट्स उसी की तरह हैं। मल्टी लाइन के लिए हम थोड़ा डिफरेंट होगा, यहाँ पे हमें टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करना पड़ेगा और इसमें रोज़ और कॉलम्स मेन एट्रीब्यूट है, बाकी सारे सेम ही होंगे। सो रोज़ मीन्स 5 कैरेक्टर्स की रोज़ होनी चाहिए एंड कॉलम्स में 10 कैरेक्टर्स आएंगे। तो इसका एक डेमो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, सो और सेकंड नेम आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये निखिल सिंह आ रहा है, मीन्स ये हमने इनिशियलाइज़ कर रखा है इसकी वैल्यू को। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू पेज सोर्स में ये लास्ट नेम, हियर द वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो जो भी वैल्यू में लिखा होगा वो इनिशियलाइज़ होकर यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे हमने ये भी शेयर किया है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ 5 होनी चाहिए। तो इनिशियली हम जो भी देना चाहे दे सकते हैं, बट जब हम इसको फिल करने के लिए जाएंगे तो ये 5 वैल्यू से ज़्यादा नहीं, 5 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लेगा। लाइक 1 2 3 4
5, नाउ इट विल नॉट टेक एनी वैल्यू। ठीक, सो जो भी हम यहाँ पे फिल करना चाहें, ये पासवर्ड टाइप का है तो ये पासवर्ड रहेगा। यहाँ पे हम अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं, मीन्स मल्टीपल लाइन की इन्फॉर्मेशन जो भी हम इंटर करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मीन्स इसका टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स हमें लिखना पड़ेगा। टाइप एक एट्रीब्यूट है जिसको इक्वल टू चेक बॉक्स हम लिखेंगे, इसका कुछ नाम होगा, इसमें वैल्यू ऑन होगी। तो चेक बॉक्स के अंदर जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो कौन सी वैल्यू सर्वर पे सेंड करेगा, तो जो वैल्यू सेंड करनी है उसको हमें वैल्यू के अंदर लिखना पड़ेगा। हियर वैल्यू इक्वल टू ऑन, सो दिस वैल्यू विल बी सेंड टू द सर्वर व्हेन वी विल क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स। सो इसका भी एक डेमो देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक चेक बॉक्स है, सेलेक्ट द थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट्स। 2 पे पहले से ही हमने चेक मार्क कर रखा है, तो आपको चेक मार्क अगर पहले से ही करना है तो उसके लिए आपको चेक्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, चेक्ड। सो इनपुट टैग के अंदर टाइप सबका चेक बॉक्स ही है, तो सबका टाइप चेक बॉक्स रखा है। सबके नेम अलग अलग होंगे, सब अलग अलग चेक बॉक्सेस हैं, सबकी कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 2 पहले से ही सिलेक्टेड हैं। सिमिलरली रेडियो बटन क्या हुआ, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में ये डिफरेंस है कि चेक बॉक्स में वी कैन सेलेक्ट मोर देन वन वैल्यू, व्हेन वी हैव टू सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शंस देन वी हैव टू यूज़ द चेक बॉक्स। अगर हमें एक ही वैल्यू चूज़ करनी है एट ए टाइम तो हम उसके लिए रेडियो बॉक्स बटन का यूज़ करेंगे। लाइक वी कैन सी हियर, इसमें से हमको सिर्फ एक ही वैल्यू चूज़ करने का ये ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ करते हैं और फिर से हम दूसरा चूज़ करने के लिए जाएंगे तो ये अलाउ नहीं करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब का एक नाम होगा सारे कंट्रोल्स का। सो रेडियो बटन, ये सारे टाइप रेडियो होगा तो इट विल क्रिएट रेडियो बटन। सबका नाम हमने सेम कर रखा है, इलेक्टिव नाम है तो सबका नाम सेम होगा, इसलिए ये मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ नहीं कर रहा है, बिकॉज सब एक ही नाम हमने दे रखा है। अब जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू सेंड होगी सर्वर पे अगर हम क्लिक करेंगे। लाइक यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू डिजिटल सेंड करेगा। ठीक, यहाँ पे डिजिटल, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमने HTML में वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर रख रखी है वो उसको सेंड करेगा सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए। सेलेक्ट बॉक्स, ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ से हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका कोड देख के समझेंगे इसका क्या है। पहले सेलेक्ट एट्रीब्यूट, सेलेक्ट टैग है हमारे पास। सेलेक्ट टैग में उसका नेम हमें इस टाइप का कंट्रोल करना है जिसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं, तो इसका नाम रखेंगे हम ड्रॉप डाउन। देन उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हमको ऐड करनी है उसको ऑप्शन टैग के अंदर लिखेंगे। तो सेलेक्ट टैग ऑप्शन टैग के साथ यूज़ होगा। सो ऑप्शन में हम डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखेंगे, वैल्यू इक्वल टू मैथ, वैल्यू इक्वल टू फिजिक्स, बट यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिस्ट्री, तो ये सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक, नाउ जब भी हम क्लिक करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे हम हिस्ट्री इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये इंग्लिश ये हमने सेलेक्ट किया है,